ਕੀ ਹੋਇਆ जी किस कराउन आए हो किस कहते नहीं होनी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੇ ਐਸਡੀਓ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸਡੀਓ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਬਹ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੁਬਹ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 11 ਵਜ ਗਏ 11 ਵਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ 11:15 ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ 60,000 रुपया 60,000 ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 18,000 ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ 60,000 ਬਿੱਲ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਓ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ डिमांड नोट्स बनना है तो ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕੀ डिमांड नोट्स ਕੀ ਹੋਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਸਰ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਾ 25-30 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੁਣ ਆਏ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾਪਡਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ है अपना कसूर एरिया बिल सारा क्लियर कराया हुआ है पहले वाला एक माह में इन्होंने 3 लाख रुपया बिल का भेज दिया है। हमें इसका कैसे डाला एक महीने का एक माह में डाला है पता नहीं किसके बाद डाला है कैसे डाला है या हमें नहीं पता ये नाज़रीन क्या आपके घर में क्या क्या कितने कमरे हैं मेरे घर में 3 कमरे हैं जिसमें एक कमरे में हम रैश रखी है बाकी अच्छा। नए बने हैं उसमें कुछ चीज़ एक नहीं पंखा चलता है एक पंखा लाइट चलती है एक लाइट चलती है और बस कूलर है कूलर नहीं है फ्रिज है नहीं एसी है नहीं है और क्या चलता है बस यही चीज़ें हैं एक प्लेट लगी है सोलर की उसके साथ हम गुजारा करते हैं साथ पहले कितना बिल आता था 1700-1800 आता था 1700-1800 आता था हाँ जी। कितने अरसे से इतना बिल आ रहा था 5 साल से इतना 5 साल से 1700-1800 हाँ जी फिर एकदम कितना बिल आया 3.25 लाख रुपया क्या नाम है आपका असगर अली 3.25 लाख रुपया बिल इस वजह से आया है कि सरकारी दफातर में कसूर में डायरेक्ट सप्लाई जा रही है फ्री बिजली जा रही है उन सरकारी याशियों का बिल ये गरीब आदमी असगर अली दे रहा है जिसका माहाना बिल 1700-1800 रुपये आता था जिसके घर में सिर्फ एक पंखा है एक लाइट है फ्रिज नहीं है एसी नहीं है कूलर नहीं है 1700-1800 रुपये इस टैक्स का बिल आता है। एक सोलर प्लेट भी लगवाई हुई है उसने एक कमरे में रहती है पूरी फैमिली 1700-1800 रुपया बिल आता है और एकदम 3.25 लाख रुपया बिल आ जाता है सरकारी दफातर में आता है मिलता है कोई यहाँ पे वो कहते हैं ये क्लियर नहीं होगा ये डालो उधर जज की तरफ करो जाओ मर जाओ सानू की हाँ यही कहते हैं यही करना ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿਸੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਅਲਫੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਨਾਲ ਹਾਤਾ 8 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਾਤਾ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਂਪਰ ਕੱਟੇ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 8 ਲੱਖ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਤਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਵੇਲੇ ਬਾਬੜਾ ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੋਬਲ ਇਜ਼ਰਾਈ कसूर कचहरी में डायरेक्ट सप्लाई है मैंने आपको यही बात बताई जो गलत है वो गलत है मैं उसको गलत है वो हो रहा है प्रेफर नहीं मैं करूंगा आपसे पूछ रहा हूँ हो रहा है गलत हो रहा है गलत हो रहा है जा रही है फ्री बिजली जा रही है फ्री बिजली फिर इन गरीबों पे पैसा पूरा हो रहा है बिल्कुल ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ TNP ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ 1991 ਮਾਡਲ ਦਾ अच्छा 5-8 ਨੂੰ 3 ਬੰਦੇ ਵਾਪਡਾ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਗਏ ਨੇ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ 7000 ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਸਿਵਲ ਏਰੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ MNT ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ अच्छा ਇਹ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ और मीटर ਬਾਅਦ ला लिया ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19720 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ कितने पैसे हो गए ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 7000 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਲੈਕ ਮੇਲਿੰਗ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਫੀਕ सर जी ये मीटर मेरा जड़ा है ना इनते ये रुक गया सी ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੀਟਰ ਸੀ पुराना मीटर रोक गया सी मैं आके दरखास्त देती सर जी SDO साहब ਨੂੰ अच्छा। ਰਾਸ਼ਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹਾਂ। ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਤੀ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਮੀਟਰ ਲੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਜੀ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਛਾ
7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਨਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਸਰ ਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿੱਲ ਹੈ ਵੇਖੋ ਸਰ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35,000 ਹੈ, 18,000 ਹੈ, 42,000 ਹੈ, 50,000 ਹੈ, 60,000 ਹੈ, 65,000 ਹੈ, 66,000 ਹੈ, 77। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਜੀ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1500 2500 2000 ਅਸੀਂ ਦੋ ਭਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਟੋਟਲ 60,000 ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰ ਜੀ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਕੋਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾरो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾरो ਤੇ ਨਵਾਂ मीटर देने यूसुफ साहब को मीटर। यार नाज़रीन, जैसा कि भाईजान फरमा रहे हैं उनका बिल टोटल 1,000-1,500 रुपया 2,000 रुपया मैक्सिमम बिल आता था। पुराना मीटर था, इन्होंने बताया कि ये मीटर अब रुके है, ये आगे मजीद काम नहीं कर रहा। इन्होंने कहा दरख्वास्त दी कि इन्हें नया मीटर लगा दिया जाए, जो अखलाकी तौर पर एक बड़ी अच्छी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत था। उसका बदला इन्हें ये मिला कि इनका पुराना मीटर उतार लिया गया, नया मीटर की ये पैसे भी दे दिए, दरख्वास्त भी दे दी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 8 महीने से यहाँ पे आ रहे हैं, उनका वो मीटर नहीं लगाया जा रहा और पिछले 7-8 माह से इनको एवरेज बिल भेजा जा रहा है जो तकरीबन कोई 60,000 है, 66,000 है, 65,000 है, कोई 50,000 है। ये नाज़रीन जो सोसाइटीज़ मैंने आपको दिखाई, जो अखबार आपको बताया और फिर मैंने आपसे सवाल किया कि वो जो बिल उन सोसाइटीज़ में जो रिहाइश पजीर लोग हैं उन्हें नहीं आ रहा, वो बिल कहाँ जा रहा है। तो ये एक 2 मरले के घर में आया हूँ और यहाँ पे आपको सवाल का जवाब दूंगा कि वो बिल कहाँ से पूरा किया जा रहा है, किसकी जेब काटी जा रही है, किस पे जुल्म का पहाड़ ढाया जा रहा है। ये यहाँ पे हम 2 मरले का एक घर है, यहाँ पे कसूर में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जनाबे वाला दिखाएं, आप बताएं कितना बिल आया आपका? भाई हमें 2,70,000 बिल आया है। हमें 1700-1200 इतना बिल आता होता था। ये वो मैं देख लेता हूँ। कितना पहले कितना घर में क्या क्या चलता है? हमारा पंखा चलता है और लाइटें वगैरह चलती हैं बस। कितनी लाइटें चलती हैं? 4 लाइटें होती हैं। कूलर कोई एसी? हाँ सोलर वाला कूलर लगा हुआ है। सोलर वाला वो तो सोलर वाला है ना, लाइट वाला नहीं है। अच्छा। तो वो भी पंखा भी नहीं चलता, दिन टाइम वो नहीं चलता, रात को भी चलाते हैं जब सन ख़त्म हो जाता भी। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं भाई का थोड़ा सा बिल का थोड़ा मुआयना कर दूं। आपको बता दूं कि इनका पहले 525 रुपये बिल आया, फिर 1,300 रुपये आया, फिर 2,100 रुपये आया, फिर 1,200 रुपये आया, फिर 2,600 रुपये आया, फिर 700 रुपये आया, फिर 1,300 आया, फिर 2,800 आया, फिर 1,700 आया। ये इनके पिछले 1 साल का बिल है, अगस्त 2024 से लेके जुलाई 2025 तक। फिर इनका अगस्त 2025 में इकट्ठा बिल आ जाता है, यानी कि 1 महीने का ही 2,70,427 रुपये, यानी कि 2024 से लेकर 2025 तक जुलाई के दौरान, जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक उनका कितना बिल आया वो मैंने आपको बता दिया। एकदम अगस्त में 2025 में कसूर के इस रिहायशी का, ये भाई का 2 मरले का घर है, इनको बिल आ जाता है 2,70,427 रुपये। वही बात जो मैंने आपको बताई कि सोसाइटियों वालों का बिल वो कहाँ से वो पूरा किया जाता है, वो इनसे पूरा किया जाता है। इसके बाद आपने क्या किया? हम वहाँ पे जाते हैं नाज़रीन के पास, इदारे के पास, वो हमारी बात नहीं सुन रहे। हम 2-3 दफ़ा गए हैं इदारे के पास। ये जो वापटा वाले जा रहे हैं, 2-3 दफ़ा गए हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो कहते हैं मीटर उतार के ले जाएंगे, पर्चा वगैरह कर देंगे। फिर गरीब लोग हैं, क्या कर सकते हैं, चुप करके बैठ गए हैं। इसके पैसे कहाँ से देंगे? हमारी कौन सी लाइन लगी हुई है जो हम अपने पास। क्या करते हैं आप? मैं भाई स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? मैं B कैटेगरी कर रहा हूँ।